Welcome to students. This lecture is based on cell structure and its organization, and we are discussing currently the extraordinary powerhouse of cell, that is mitochondrion. Plural word mitochondria. Singular it is called mitochondrion. So that is the major cell organelle found in almost all eukaryotic cells, whether it is plant cell or animal cell. There is a requirement of mitochondria, of course, and these cell organelles we can say are predominant in cytoplasm. They are found scattered in cytoplasm, and they may be 1, 2, 3, or sometimes many. Okay, some cells are there which may possess more than 100. Some cells are there which may possess thousands of mitochondria as well. So as the activity of cell goes on increasing, it need extra potential, extra energy, extra power, and that's how the arrangement is carried out internally with the help of specialized cell organelles, the powerhouses of cell, called mitochondria. So let's deal with the mitochondria. The scientist called Benda named the term mitochondria first ever, and we know very well there are some cell organelles in cell which are double membranous. So mitochondria are one of them. So you can clearly see here mitochondria shows presence of two different layers. You can see the outer membrane, and you can also see here the folded one, inner membrane. Outer membrane of mitochondria is we can say fully permeable. It allow different types of proteins, different types of molecules, materials to enter into it, means into the outer chamber. This gap particular is present between two layers is called outer chamber or intermembranous space. This particular gap is called intermembranous space in between two layers. Intermembranous space, also called as outer chamber of mitochondria, and this is called inner chamber. Outer chamber, inner chamber. So these two membranes we're talking about, that is the outer membrane that is fully permeable, okay, and that shows the presence of special protein particles called, these outer membranes are consist of special particles called porine, or we can say Parsons particle. Porine or Parsons particle they show, and that's how it allow a lot of material to enter into the outer chamber. On the other hand, inner membrane is selectively permeable. ये आप देख सकते हो, जो अंदर की तरफ आप ब्लू कलर्ड मेम्ब्रेन देख रहे हो, जो फोल्डिंग्स भी दिखाती है, और उस इन फोल्डिंग्स को, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को आपने क्रिस्टी कहना है, क्रिस्टी, एंड दोस सिंगुलर क्रिस्टा, ठीक है, सिंगुलर क्रिस्टा, प्लूरल क्रिस्टी. तो ये क्रिस्टी जो है ये इनफोल्डिंग्स होते हैं इनर मेम्ब्रेन के. इनर मेम्ब्रेन थोड़ी बड़ी होती है, वो फोल्डिंग दिखाती है, राइट, और इन फोल्डिंग्स को आपने क्रिस्टी कहना है. और क्रिस्टी ये इनर मेम्ब्रेन है जो सिलेक्टिवली परमिएबल है, और ये आउटर मेम्ब्रेन है जो फुली परमिएबल है. दोनों के परमिएबिलिटी में आपने डिफरेंस नोट करना है राइट हियर. ओके, सो यू कैन सिंपली सी दी स्पेशल पार्टिकल्स शोन ऑन इनर मेम्ब्रेन. क्रिस्टी पे आप देख सकते हो, हमने रेड कलर में दिखाए हैं और उसको नाम दिया है F1 पार्टिकल्स. ठीक है, F1 पार्टिकल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द इनर मेम्ब्रेन, स्पेशली ऑन क्रिस्टी. तो ये जो F1 पार्टिकल्स है, या इसको आप कह सकते हो F1 F0 particles, also called oxysomes, also called elementary particles, also called Fernandez-Moran particles. इतने सारे इसको नाम है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है. बट ये जो आउटर चेम्बर है, यहाँ कुछ और चीज़ें भी आप देख सकते हो, दैट इज इट्स ओन डीएनए. डीएनए कहाँ होना चाहिए वैसे? डीएनए होना चाहिए इन न्यूक्लियस, राइट, क्रोमोसोमल डीएनए. लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स्ट्रा डीएनए. आप देखिए दो सेल ऑर्गेनेल्स में मिलेगा, एक माइटोकॉन्ड्रियन और दूसरा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है. तो यहाँ पे देख सकते हो आप क्लियर कट माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी यहाँ से. तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, आरएनए भी होता है, ठीक है. और यहाँ पे ये ग्रीन कलर में कुछ खास स्ट्रक्चर में दिखाए हैं जो कि राइबोसोम से रिप्रेजेंट कर रहा है, राइबोसोम, ठीक है. देखिए राइबोसोम 70s टाइप का होता है, जैसे बैक्टीरिया में मिलेगा 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स. And these ribosomes are going to synthesize its proteins, which are nothing but enzymes essential for aerobic respiration. Means simply we can say for Krebs cycle and for electron transport chain reaction, all the enzymes needed are produced right here in the matrix by ribosomes. Okay, तो यहाँ ribosomes है, यहाँ DNA, RNA है, बहुत सारे enzymes है,
मिनरल्स है और बहुत सारा वाटर कंटेंट भी है. दैट्स व्हाट इज अ जेली लाइक मैट्रिक्स राइट देयर इन इनर चेंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ऑन द अदर हैंड आउटर चेंबर शोज सीरस वाटरी फ्लूइड. तो यहाँ पे थोड़ा वाटरी फ्लूइड है आउटर चेंबर में, लेकिन इनर चेंबर में जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है और वहाँ होगा क्रेब्स साइकिल एक्सट्राऑर्डिनरी और वहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन with the help of these special particles called F1 particles, oxysomes, elementary particle. ठीक है ना, ये particles का यहाँ पे एक यूनिक रोल होता है, इसलिए इनका नंबर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया में अबाउट 1 to 10 लाख हो सकता है. इतना ज़्यादा नंबर इन पार्टिकल्स का है क्योंकि वो एज ए एंजाइम काम करते हैं एटीपी सिंथेस और वहाँ से प्रोटॉन पंप चैनल फॉर्मुलेट होता है जिससे एटीपी प्रोडक्शन होगा और एटीपी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा. इसीलिए इसको कहा गया है पावर हाउस. Because ATP is a energy currency. All the action potentials, all the active activities जो हमारे सारे काम हैं सेल के हो चाहे बॉडी के हो, ये सब कुछ डिमांड करते हैं पावर एंड दैट इज कॉल्ड ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, विच आर गोइंग टू प्रोड्यूस राइट हियर. और ये जो साइट है आपने देखा, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया साइट होते हैं फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें आप पढ़ते हो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है. उसके बाद वहाँ पे लिंक रिएक्शन के बाद क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है. तो इसमें से ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म में हो जाता है इन साइटोप्लाज्म, लेकिन अगर क्रेब्स साइकिल होना है, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन होना है तो हमें चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया. अगर वो बैक्टीरिया है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, ठीक है. इसलिए वहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जबकि हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का. तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होना है तो उसके लिए ज़रूरी है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहीं पे हो सकता है क्रेब्स साइकिल, यहीं पे हो सकता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इसीलिए हमें चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया. एक सिंगल ग्लूकोज से आपको 38 एटीपी मिलने चाहिए जो मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन ऑक्सीजन, जबकि बैक्टीरिया जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं उन्हें सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं. सो 1 ग्लूकोज गिव्स 2 एटीपी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन. ऑन द अदर हैंड glucose produces 38 ATP with the help of mitochondria. तो माइटोकॉन्ड्रिया है तो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है 38 ATP, और जबकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, जैसे कि बैक्टीरिया में नहीं है, हमारे आरबीसी से रेड ब्लड सेल्स उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, तो वहाँ पे आपको सिंपली एनारोबिक रेस्पिरेशन से बस 2 ATP मिलेंगे. सो दैट इज द डिफरेंस. दैट्स व्हाट इज पावर हाउस. ओके, तो इसका स्ट्रक्चरल डिटेल्स हमें समझना है, फटाफट देख लो. ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एवरेज 2 माइक्रोन का सेल में रहता है, ठीक है. 0.2 to 2 माइक्रोन इसका नॉर्मल डायमेंशन है. कभी कभी ये थोड़े जाइंट साइज के भी मिलते हैं, समटाइम 3 to 4 माइक्रोमीटर एज वेल, ठीक है. तो इसमें कोई कलर नहीं रहता है, ठीक है, नो कलर एट ऑल. इसका जो शेप है मोस्टली ओवल रहता है, एलिप्टिकल डम्बेल शेप भी मिलते हैं, कभी डिस्क लाइक भी मिलते हैं, कभी ऑलमोस्ट सर्कुलर भी मिलते हैं. तो अलग अलग शेप वेरिएंट्स आप देख सकते हो. शेप इसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है. शेप में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, डाइवर्सिटी है. सेल टू सेल शेप में चेंज, कलर इसको होता नहीं है, इसका शेप वेरिएबल होता है, ठीक है. और साइज एवरेज 2 माइक्रोमीटर का होता है, 0.2 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमेंशन. ओके, और इसी के साथ साथ अगर इसका नंबर देखो तो नंबर वेरी करता है सेल टाइप पे, ठीक है. जैसे कि हमारे लीवर के सेल काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है. उस तरह आप देख लो पैनक्रियास के सेल्स काफ़ी एक्टिव है, उसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, राइट. सो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी सेल टू सेल, मे बी 1, 2, 20, 100 और समटाइम thousands. Okay, so number is greatly variable. Basically, mitochondria shows 2 outer and inner membranes, right? Outer membrane is fully permeable and made up of special proteins, porine or Parsons particle, fully permeable. Inner membrane is selectively permeable and it shows some foldings like this, and foldings called cristae, and cristae are finger-like enfoldings. Okay, and these cristae are characterized by presence of special particles called F1 particles, F0 particles, F1 F0 particles, right? Fernandez-Moran particles, elementary particles, कितने सारे नाम इसको दिए गए हैं, और ये एनर्जी प्रोडक्शन में यूनिक रोल प्ले करते हैं F1 particles. इसमें क्या है, इसमें एंजाइम है, वाटर है, मिनरल्स है, अपना डीएनए वो पोजेस करता है, साथ में उसमें राइबोसोम्स है 70S टाइप. इसमें आरएनए भी होते हैं, आरएनए, डीएनए, मिनरल्स, एंजाइम्स, खूप सारे पाणी आणि हा डीएनए असणे याला बनवते आहे एक प्रकारे सेमी
ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल. ठीक आहे, सेलमध्ये दोनच सेल ऑर्गेनेल असे आहेत जे सेमी ऑटोनॉमस आहेत, एक तर क्लोरोप्लास्ट, दुसरा माइटोकॉन्ड्रियॉन. ठीक आहे ना. तर तुम्ही बघू शकता क्लोरोप्लास्ट आणि माइटोकॉन्ड्रियॉन हे दोन्ही सेमी ऑटोनॉमस आहेत. याचं कारण काय आहे? याचं कारण हेच आहे की यामध्ये आपला स्वतःचा डीएनए आहे. ओके, यूनिक डीएनए दे पोजेस. सो डीएनए उसमें रहता है तो उसका पावर ऑफ रिप्लिकेशंस की मदद से ये अपना यूनिक कॉपी बना सकता है. दैट्स हाउ दे इंक्रीज इन नंबर. ओके, तो इसमें डीएनए है, इसमें आरएनए है, राइबोसोम्स है, मिनरल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सबसे यूनिक चीज़ इसमें है क्रिस्टी पे F1 पार्टिकल्स. इसको सेपरेटली भी पढ़ते हैं. ओके, स्ट्रक्चर बेसिकली आपके ध्यान में आ गया होगा, तो इसको हम रब कर सकते हैं. आउटर इनर मेम्ब्रेन, आउटर चेंबर, इनर चेंबर, डीएनए, आरएनए, ठीक है, राइबोसोम्स, और ये मैट्रिक्स है, ये क्रिस्टी होते हैं, और ये F1 पार्टिकल्स. गॉट इट. तो F1 पार्टिकल्स को हम यहाँ पे सेपरेटली दिखा देते हैं, फिर उसका हमें फंक्शन पता करना सिंपल हो जाएगा. राइट. So these mitochondria are commonly found in eukaryotic cell in cytoplasm, and these are absent in bacteria, absent in human RBCs. Okay, because there are transformation of cells. तो हमारे RBC ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं, वहाँ पे कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है, सिंपली हीमोग्लोबिन रहता है उसमें, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी मिसिंग होते हैं. ठीक है, यहाँ पे इस तरह का पार्टिकल हम दिखाते हैं आपको. सो दिस पार्टिकल रिप्रेजेंट ऑक्सीजोम. इसको इस तरह दिखा दीजिए, जस्ट लाइक दिस. हेड, तो ये है इसका हेड पार्ट. ओके, इसको आप कह सकते हो F1. ये होता है पेडिसेल, पेडिसेल को आप कह सकते हो स्टॉक, और इसी को कहा जाता है F0, और ये होता है इसका बेस. इसे आप कहिए F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल. ओके, इसी को कहा जाता है F1 F0 पार्टिकल. इसी को दूसरा नाम दिया गया है ऑक्सीजोम. ऑक्सीजोम, राइट. इसको क्या नाम दिया गया है? ऑक्सीजोम, राइट. और ऑक्सीजोम के साथ साथ इसको आप कह सकते हो एलिमेंटरी पार्टिकल. एलिमेंटरी पार्टिकल, या फिर इसको कहा जाता है फर्नांडीज एंड मोरान पार्टिकल. फर्नांडीज एंड मोरान पार्टिकल, ये भी आप नाम याद रख सकते हो. ठीक है, फर्नांडीज एंड मोरान पार्टिकल. सो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन करता है. ये क्रेब्स साइकिल का और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का साइट होता है. ठीक है, आप देख सकते हो, और इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है माइटोकॉन्ड्रिया. किसी भी सेल ऑर्गेनेल को अगर आप देखो तो वो एटीपी प्रोडक्शन से कैरेक्टराइज होगा. उसको एटीपी का नीड होगा, और वो एनर्जी कौन सप्लाई करता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाई करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे साइटोक्रोम्स भी रहते हैं which are electron carriers. Okay, that's so they are going to help in electron transport system. Okay, तो आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया ये सिंपल पावर हाउसेस है. इसका काम ही है टू जनरेट एटीपी फ्रॉम डिफरेंट सबस्ट्रेट्स लाइक ग्लूकोज. ठीक है, तो ग्लूकोज हो, या फिर एसिडिल कोएंजाइम ए हो, पायरुविक एसिड हो, या फिर फैट्स हो, या प्रोटीन्स हो, एज अ सबस्ट्रेट कोई भी चीज़ ली जा सकती है. उसका ब्रेकडाउन होता है, अल्टीमेटली कोएंजाइम ए आपको मिलाना होता है. उसके बाद होगा क्रेब्स साइकिल, उसके बाद होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसी के लिए ये डिज़ाइन रहता है माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, सो होप यू गेट आइडिया अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट्स फंक्शन एंड व्हाई इट इज सो कॉल्ड पावर हाउसेस एज बीइंग एनर्जी प्रोड्यूसर. ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे, मिसिंग इन बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोटिक सेल वी कैन से, एंड आरबीसीज एज वेल. इसमें नहीं रहते हैं. बाकी हर जगह एनर्जी का नीड होता है, इसलिए ये सेल ऑर्गेनेल्स उसमें मोस्ट होते हैं. So mitose means thread, chondrin means granules. तो ऐसे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स जो दिखते हैं थ्रेड लाइक एक्चुअली, तो माइटोकॉन्ड्रिया ये होते हैं पावर हाउसेस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.